Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we will begin the remain portion of previous video lecture. Now we are going to talk about the silent features of the DNA. In previous video lecture, you have learned the structure of dinucleotide, polynucleotide as well as the double helix model of DNA. First of all, the double helix model was reported by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin in 1951 after the fractional crystallization process and later than the X-ray diffraction method. Later in 1953, James Watson and Francis Crick gave the idea of double helix model of DNA. In this video lecture, we will learn about the silent feature of double helix model of DNA. One by one, we will describe about the silent features and later than its numerical related to the silent features of double helix DNA. So first points regarding the silent features of double helix model of DNA is DNA consists two long chain of polynucleotide. DNA consists two long chain of polynucleotide. This should be the first important points for the double helix model of DNA. There are more than 2 dozens of silent features you may learn in your book from the different books from NCERT, from SciTech. There are 2 dozens, about 24 points, about 20 plus points available in your books. But here I am going to discuss you only few selected points regarding the silent feature. Only 10 to 15 points must be learned in your must be in your mind in order to write the silent features. Now back to the second points. Both chain always held together as anti-parallel polarity. It means at least 2 chain required for the synthesis of the single molecule of double helix DNA. The first chain, if 5' to 3' polarity, then the opposite chain will have 3' to 5' polarity as this. Suppose that this is the 5' to 3' polarity, then the opposite chain will be 3' to 5' polarity. This must be learned by you. The first chain polarity is anti-parallel to the second chain. The first chain polarity is 5' to 3'. The second chain polarity always will be the anti-parallel. This is the parallel 5' to 3', and this is anti-parallel to the respective chain. This should be in your mind. Now the next, DNA consists the deoxyribose sugar as the pentose sugar and nitrogenous base as adenine, guanine, cytosine and thymine only. No uracil found. Keep in mind. Fourth point, in DNA, the amount of adenine is always equal to thymine and amount of guanine always equal to cytosine. This will not be a type of triple bond or double bond. This is equal to, the guanine is equal to, amount of guanine is equal to the cytosine and amount of adenine is equal to thymine. This must be right in your own language. It means according to Chargaff's rule, this is called as Chargaff's rule. Chargaff's rule. Keep in mind. Given by Irving Chargaff. इरविन चारगाफ नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि डीएनए में एडेनिन का अमाउंट हमेशा थियामिन के इक्वल होता है और गुआनिन का अमाउंट हमेशा साइटोसिन का इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से जान लेना, समझ लेना।
और उन्होंने ये भी बताया कि डीएनए में प्यूरीन और पिरिमिडीन का जो रेशियो होता है हमेशा एक होता है, ठीक है। इट मींस द रेशियो ऑफ प्यूरीन अपॉन पिरिमिडीन is always equal to 1. It means from purine base the adenine and guanine come from purine base, and cytosine and thiamine come from the pyrimidine base, that is equal to 1, and this should be learned in your own language. This is called as Irwin-Chargaff's rule. Now back to the important question related to Chargaff's rule. लिसन, जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू न्यूक्लियोटाइड की कितनी आ रही है? टोटल वैल्यू न्यूक्लियोटाइड की आ रही है 1500, ये याद रखना है। टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड है? 1500। और क्या दिया है वैल्यू में? गुआनिन दिया है। कितना दिया है? 410, ये याद रखना है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है? पिरिमिडीन पूछ रहा है, ठीक। चलो आते हैं। टोटल न्यूक्लियोटाइड 1500 दिया है, गुआनिन 410, तो आपको पता है गुआनिन ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन, चाहे साइटोसिन इक्वल टू गुआनिन बोलो चाहे गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन बोलो, ठीक है। तो ये गुआनिन कितना है? 410, तो साइटोसिन भी होगा 410, यानी कि 410 प्लस 410 820, यही हो गए। क्या क्या? एडेनिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन अकेले 820, यही हो गए। अब आपको टोटल न्यूक्लियोटाइड कितना है? 1500, 820 घटा देते हैं। 820 1500 में से जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 1500 माइनस 820 0 8 680 आ गया। तो 680 जो बचेगा वो एडेनिन प्लस थियामिन की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इसका 50% एडेनिन और 50% थियामिन। तो 50% 680 का 50% कितना होगा? 340। तो 340 एडेनिन कितना हो गया? 340, और थियामिन कितना हो गया? ये भी 340। और ऐसे ही गुआनिन कितना आया था? 410, और साइटोसिन कितना आया था? 410। ये सब जोड़ोगे तो 1500 आ जाएगा। अब इसमें से पूछ रहा है पिरिमिडीन बेस क्या है। तो पिरिमिडीन क्या होता है डीएनए में? पिरिमिडीन होता है साइटोसिन थियामिन, और प्यूरीन क्या होता है? एडेनिन एंड गुआनिन। तो यहाँ पे देखो साइटोसिन कितना है? 410, और थियामिन कितना? 340। तो दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, तो 410 और 410 एंड 340 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 750। दिस इज द वैल्यू फॉर द पिरिमिडीन बेसिस, ठीक है। इतनी बातें हो जाएंगी क्लियर। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन भी बता देते हैं आपको। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बता दे रहे हैं। लिसन, जो वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग क्या है? थियामिन 40% एंड साइटोसिन की वैल्यू पूछ रहा है। साइटोसिन की वैल्यू परसेंट में ही पूछेगा, ठीक है, परसेंट में ही बताना है। तो थियामिन अगर 40% दिया है, सीधी सीधी बात है कि थियामिन ऑलवेज इक्वल टू एडेनिन, देन थियामिन 40% है तो एडेनिन भी 40% होगा। क्लियर है? दोनों मिलके 80% कवर कर रहे हैं, तो बाकी 20% में किसी भी सिस्टम में 100% का ही रेशियो रखा जाता है। किसी भी सिस्टम में 100% के रेशियो को रखेंगे तभी जाकर के उसकी परसेंटेज वैल्यू आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे 80% में एडेनिन एंड थियामिन दे दिया है, ठीक है। 80% में एडेनिन थियामिन, तो बचे हुए गुआनिन एंड साइटोसिन कितने परसेंट में आएंगे? 20% में, यानी कि 20% में गुआनिन एंड साइटोसिन दोनों, तो 10% आपका गुआनिन आ गया और 10% आपका साइटोसिन आ गया। 10% गुआनिन एंड 10% साइटोसिन, ठीक है। तो साइटोसिन की जो वैल्यू पूछ रही है आंसर क्या हो जाएगा? 10%। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसके बाद हम अलग तरह के साइलेंट फीचर की मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना। DNA, the diameter of DNA that occupied by the both chain are always 20 angstrom. The diameter of DNA, this is the diameter of both chain, that is diameter of DNA
diameter of DNA that occupied by both chain are always 20 meter, 20 angstrom. This is 20 angstrom. ऐसे मैंने बताया था कि डीएनए का जो लेंथ होता है वो कितना एंगस्ट्रॉम ऑक्युपाई करता है, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम। और सेंट्रल एक्सिस से एक साइड में इसका डिस्टेंस होता है 10 एंगस्ट्रॉम। ये लिख लेना कॉपी में। अगला पॉइंट, फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस इट कवर 10 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस, 10 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस। कीप इन माइंड। डीएनए कंसिस्ट, अगला पॉइंट, डीएनए कंसिस्ट सुगर फॉस्फेट बैकबोन at the peripheral part, while nitrogenous base at the center, ठीक है। अगला अगर लिखना चाहें साइलेंट फीचर्स, यहां पे भी लिख दे रहे हैं, साइलेंट फीचर्स ही लिखना है। मैं बोलते जा रहा हूं इसी वजह से, इसको अगर आप समझ ना पाए तो मेरी आवाज को लिखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, between two nitrogenous base of two polynucleotide chain हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म। ये एग्जाम में पूछता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनता है? बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस ऑफ टू डिफरेंट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखो, एक नाइट्रोजनस बेस ये, एक नाइट्रोजनस बेस ये है। जैसे थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दे रहा हूं, ये दो चेन है, तो एक नाइट्रोजनस बेस, एक नाइट्रोजन, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड दो अपोजिट, जैसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन ये है, दूसरा ये है, तो या इसके सामने वाला जो दूसरा वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अगर ये डबल बॉन्ड है तो एडेनिन थियामिन है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो गुआनिन साइटोसिन है। ये याद रखना, ठीक है। अब आगे लिखते हैं कॉपी में, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म, फॉस्फोडाइएस्टर, अभी बॉन्ड की प्रॉपर्टी ये सब एक एक नंबर पे पूछता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है? फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर के बीच में। अगला प्रॉपर्टी लिख दीजिए, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। ये प्रीवियस वीडियो को, लेक्चर को देखेंगे तो वहां से क्लियर होगा, ये चीज यहां से क्लियर नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी में लिख जरूर सकते हैं, लेकिन यहां से ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो डीएनए को यूनिक बनाता है आरएनए से, डीएनए को स्टेबल बनाता है आरएनए से, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। थैंक यू।